सुनना तो सीख सकते हैं। Okay, so good morning, everybody. So you are from the physiotherapy college, right? Okay. So I am Dr. Swaleh Mujawar. I'm the assistant professor here, and we are having two sets of lectures for you. One are the psychology lectures and the psychiatry lectures. So today will be your introduction into psychology. So today we'll be learning about the definition, understanding nature, its fields and its subfields. So this is just a overview about what psychology is, how psychology is. So understanding psychology in healthcare is very important. So whenever you want to understand psychology, it's like दिल में आता हो समझ में नहीं. जब भी किसी को समझने की हम कोशिश करते हैं ऐसे ही होता है. दिल और दिमाग का कनेक्शन समझ में नहीं आता है और सब पेशेंट्स फिर हमको सेम ही लगने लगते हैं. So that is why आज हम पढ़ेंगे some definition about what psychology is, importance of psychology, history, some schools of psychology, perspectives, branches, methods, some MCQs. आप लोगों को एग्जाम में MCQs भी आते हैं तो एक आपको आइडिया आ जाएगा कि एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं तो वो भी ध्यान देना. इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो. और एग्जाम के पहले आके पूछना कि मैम क्या क्या क्वेश्चंस हैं, इससे अच्छा अभी ध्यान दे दो और सीख लो. एंड आफ्टर दैट विल हैव क्वेश्चन एंड आंसर्स. सो इफ यू गाइज हैव एनी डाउट्स, जो भी हम पढ़ रहे हैं आपको कोई भी डाउट है तो बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स में वो ले सकते हैं. सो द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी और व्हाट इज साइकोलॉजी. So psychology comes from the Greek word psyche and logos. ये दो शब्दों से बना है. तो साइकी का मतलब पहले जमाने में इट यूज टू मीन सोल, बट आजकल इट इज मोर इन द कंटेक्स्ट ऑफ माइंड. सो एनीवे सोल या माइंड का स्टडी कोई साइकोलॉजी बोलते हैं. तो इफ यू वांट टू हैव लाइक द बुक डेफिनेशन, it is the scientific study of mind and the way people behave. So this is the definition and these are the words from which psychology was actually taken. And there is a lot of confusion. Confusion between psychology and philosophy, confusion between a psychologist and a psychiatrist. So ये confusion थोड़ा दूर करता है. Philosophy जो है, it deals more with ideas, more with what is going on in the society. So basically, maybe religion, how people should live their life. This is more philosophy. Psychology is understanding individual. So अगर एक individual level पे देखें तो वो psychology है. And overall अगर society को study करना है या बड़े level पे सब group of individuals को study करना है तो that is philosophy. पुराने जमाने में philosophy और psychology का काफी overlap होता था. But now psychology has emerged as a different science and it is very very different from philosophy. Psychology psychiatry में क्या difference है? Psychologists are the ones who are talking. तो जो therapies होती है, जो counseling होती है, that is done by a psychologist. A psychiatrist is basically a doctor. तो MBBS के बाद psychiatry करते हैं and they can prescribe medications. So psychiatric illnesses बहुत सारी होती है. कुछ जो काउंसलिंग से ठीक होती है और कुछ जो मेडिसिन से ठीक होती है, कुछ जो कॉम्बिनेशन ऑफ काउंसलिंग और मेडिसिन से ठीक होती है. तो डिपेंडिंग अपॉन द इलनेस या तो साइकोलॉजिस्ट देखता है या साइकेट्रिस्ट देखता है. बट यू शुड नो द डिफरेंस कि दोनों में क्या अलग होता है. ऑल्सो एज साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट हम किसी का माइंड नहीं रीड कर सकते, तो हम टेलीपैथिक नहीं है. और दूसरा याद रखना है कि साइकेट्री के जो पेशेंट्स होते हैं, सारे पेशेंट्स
एंग्री नहीं होते हैं या वायलेंट नहीं होते हैं। साइकेट्री के पेशेंट्स देख के सब लोग डर जाते हैं कि हम तो इनसे बात ही नहीं करेंगे। इमरजेंसी में भी आते हैं तो सब लोग एकदम डर जाते हैं कि साइकेट्री का पेपर है या नहीं, ये पेशेंट हमें मारने वाला है। ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स, 90% ऑफ आवर पेशेंट्स आर एक्चुअली डिप्रेस्ड और एंशियस। सिर्फ 10% होते हैं जो थोड़े एजिटेटेड होते हैं, स्पेशली अगर वो मेडिसिन पे नहीं है। वंस यू स्टार्ट मेडिसिन दे ऑल्सो काम डाउन। So try to break that myths from your mind. And psychology is important not just in hospitals or in treating illnesses. आप लोगों के day to day life में भी वो important है. It improves your communication skills. It helps in building self confidence. Maybe your relationships with other people are also much better once you start understanding their psychology and probably your own psychology. It also helps with your career. So irrespective of your career, आपका career engineering का हो, law का हो, physiotherapy का हो, if you understand psychology, it will definitely help you with your career also. So that is why ये lecture series और ये lectures काफी important है आपके लिए. So a little bit of history. कुछ scientists हैं जो बहुत important हैं. William Wundt was a German psychologist. He is known as the father of experimental psychology. So जैसे कि मैंने बोला कि पहले के जमाने में तो फिलोसफी जैसा ही साइकोलॉजी देखा जाता था, बट विलियम हंट ही established a experimental psychology clinic and उसने साइकोलॉजी को थोड़ा साइंटिफिक वे में डायरेक्शन में लेके गया और साइंटिफिक वे में लोगों को देखना सिखाया। सिगमंड फ्रॉइड का नाम आई थिंक सबने सुना होता है। साइकोलॉजी का अगर नहीं भी बैकग्राउंड हो तो सिगमंड फ्रॉइड इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस psychologist. And then Sigmund Freud's students were also there. So there was Skinner, there was and then William Wundt also, and then we have Carl Jung. So ये सब सुनने में आएगा. These are all important. But one or two scientists you should know very well. Now let's delve actually into psychology. So psychology के बहुत सारे layers हैं, बहुत सारे types हैं. So what are the different schools of psychology? So psychoanalysis was the most oldest of the psychology. सबसे पुराना वो था जिसमें हम unconscious mind में क्या चल रहा है वो देखने की कोशिश करते थे. फिर आ गया ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी. तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में दे सेड दैट इंडिविजुअल फ्री विल पे ज्यादा फोकस करो. सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है it's not important. What the individual wants is important. So that is why it was called humanistic psychology. Then we have cognitive psychology. आगे मैं बताऊंगी वो क्या है. Behaviorism, Gestalt psychology will be dealing with subsequent slides. So psychoanalytic psychology I told you सबसे पुराना वाला है. तो आपने बहुत सारे मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि सोफे पे वो लेटे रहते हैं और साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं. तो दैट वाज द पुराना वाला साइकोलॉजी. सो इन साइकोएनालिटिक साइकोलॉजी वैसे ही होता है. पेशेंट या तो लेटा होता है या कंफर्टेबली बैठा होता है. पेशेंट टॉक्स और सिर्फ बातें कर करके ही पेशेंट का सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है वो हम देखने की कोशिश करते थे. साइकोएनालिटिक साइकोलॉजी में बचपन पे बहुत ध्यान दिया जाता था कि आपके बचपन में क्या हुआ था. द चाइल्डहुड ट्रॉमाज विल डिटरमाइन योर अडल्ट प्रॉब्लम्स ऑल्सो. सो इसीलिए उसमें ज्यादा पूछते थे कि हाँ आपके बचपन में पेरेंटिंग कैसी थी, बचपन में क्या क्या ट्रॉमाज हुआ था. तो दैट was then linked to the adult things. But ये हमेशा जरूरी नहीं होता है कि ऐसा हो. So that is why other schools of psychology आए. Then came cognitive psychology. तो सबसे पहले cognition क्या होता है ये समझना जरूरी है. Cognition या cognitive processes जो है that is how your brain processes the environment. समझो आप ये प्रोजेक्टर को देख रही हो, ठीक है. तो प्रोजेक्टर को जब भी देखते हो तो सबसे पहले आता है अटेंशन.
So you're paying attention to the projector. So that is your mind actually paying attention. Then comes language. तो लैंग्वेज आप सीखते हो, लैंग्वेज आप समझते हो, इट इज ऑल्सो कॉग्निटिव प्रोसेस. लर्निंग, मेमोरी, परसेप्शन, थॉट, तो ये सब अलग अलग कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं. एंड साइकोलॉजी में ईच एंड एवरी प्रोसेस को स्टडी किया जाता है. तो जैसे पेशेंट का अटेंशन कैसा है, पेशेंट का मेमोरी कैसा है, मेमोरी के अलग अलग टेस्ट आते हैं. तो ये ईच एंड एवरी प्रोसेस को अलग अलग स्टडी करते हैं और फिर उसको एज अ होल देखते हैं कि कैसे उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही है. तो दिस इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी. ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में वी आर स्टडिंग जस्ट द पर्सन और द ह्यूमन बीइंग, इसीलिए इसको ह्यूमनिस्टिक बोलते हैं. ठीक है. तो इट लुक्स एट द बिहेवियर नॉट ओनली थ्रू द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर बट थ्रू द पर्सन. पहले ऐसा होता था कि साइकोलॉजिस्ट बताता था कि क्या इसके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है या ये क्या सोच रहा है. ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में हम पेशेंट को ही पूछते हैं कि आप बताइए आपको क्या क्या स्ट्रेसेस है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है. हम फिर उन प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं. स्टडी द मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंसेस, पेशेंट के क्या क्या होता है. स्टडी हाउ पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सेल्फ परसेप्शन, उनके पर्सनल मीनिंग्स क्या क्या होते हैं. तो इसीलिए वो पर्सन पे ही हम फोकस कर रहे हैं, पर्सन के चाइल्डहुड पे या पर्सन के सबकॉन्शियस से ज्यादा उसके नाउ एंड करंट प्रॉब्लम्स पे हम ज्यादा फोकस करते हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी. देन कम्स बिहेवियरिज्म और बिहेवियरल साइकोलॉजी. तो इसमें रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो व्हाट बिहेवियरिज्म सेज कि अगर आप किसी चीज को रिवॉर्ड करेंगे तो वो बिहेवियर बढ़ जाएगा और किसी चीज को पनिश करोगे तो बिहेवियर कम हो जाएगा. ठीक है. तो जैसे एक छोटा सा बच्चा है, बच्चे ने बहुत ज्यादा कचरा कर दिया है घर में, तो द मदर विल स्कोल्ड हिम. और मदर स्कोल्ड करेगी, पनिश करेगी बच्चे को, तो बच्चा फिर समझेगा कि हाँ घर में कचरा नहीं करना है और घर को साफ रखना है, अच्छा रखना है. तो उससे पेशेंट का या बच्चे का बिहेवियर चेंज हो रहा है. ठीक है. मम्मी ये भी कर सकती है कि वो घर को साफ कर रहा है, नीट कर रहा है, उसके लिए उसको एक चॉकलेट दे दिया या एक जैसे इसमें एक मेडल जैसे उसको दे रहे हैं. तो हम रिवॉर्ड करके भी बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, पनिश करके भी कर सकते हैं. तो रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट यूज करके जब हम पेशेंट्स का या क्लाइंट्स का बिहेवियर चेंज कर रहे हैं तो उसको हम बिहेवियरल साइकोलॉजी बोलते हैं. लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट ही हुआ था डॉग्स पे. तो उन्होंने देखा था कि जब भी एक बॉल दिखाओ पेशेंट डॉग को और फिर उसको खाना दो, तो फिर पेशेंट बॉल को भी खाने के साथ एसोसिएट करने लगता है. तो इसीलिए एसोसिएशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. एंड दिस all these experiments help us come to aversion therapy. तो एवर्जन थेरेपी क्या होता है कि समझो कोई पेशेंट एडिक्शन कर रहा है, बहुत ज्यादा दारू पी रहा है या बहुत ज्यादा बाकी ड्रग्स कर रहा है, तो उसके साथ हम एक पनिशमेंट को या एक अवर्जन को, अवर्जन यानी पनिशमेंट ही होते हैं बेसिकली, तो एक पनिशमेंट अगर हम उसके साथ लिंक कर दे तो पेशेंट का वो बिहेवियर कम होता है, एडिक्शन कम होता है. डिटेल्स में हम जाएंगे, एडिक्शन वाले भी लेक्चर्स हैं आपके, बट जस्ट ये याद रखना है रिवॉर्ड पनिशमेंट यूज करके एवर्जन थेरेपी हम यूज करते हैं इन बिहेवियरल साइकोलॉजी. देन लास्ट टाइप इज जेस्टाल्ट साइकोलॉजी. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, बट एकदम सिंपल आपको करके दिखाती हूँ कि आप इसको जब देखते हैं, सबसे फर्स्ट वाला जब आप देख रहे हैं तो यू आर सीइंग एक ब्लैक वाला आपको दिख रहा है, एक ग्रे वाला आपको दिख रहा है ना. लेकिन आपको कभी एक सिंगल स्क्वायर नहीं दिखेगा, एक सिंगल सर्कल नहीं दिखेगा. जब भी आप ये शेप्स को देखते हो उसको एज अ होल देख रहे हो. तो दिस इज व्हाट जेस्टाल्ट साइकोलॉजी इज,
कि जब भी हमारा साइकोलॉजी काम करता है हम एक होल पिक्चर को, पूरे पिक्चर को देखते हैं। बहुत सिंपलिस्टिक टर्म्स में ये है। तो जेस्टॉल साइकोलॉजी में कुछ कुछ रूल्स होते हैं। नंबर वन रूल इज प्रॉक्सिमिटी। तो प्रॉक्सिमिटी मीन्स आपको ब्लैक और ग्रे अलग अलग क्यों दिखा? क्योंकि ब्लैक वाले सब एक साथ हैं और ग्रे वाले क्लोज है। प्रॉक्सिमिटी मीन्स क्लोजनेस या एक साथ जो होता है। तो इसीलिए हमारा माइंड इसको परसीव करता है एक, ब्लैक वाला एक शेप है और ग्रे वाला एक शेप है बिकॉज दे आर क्लोज टू ईच अदर। सिमिलैरिटी, इसमें आप देख सकते हैं ब्लैक में सारे ट्राइंगल्स हैं तो इसलिए ये सिमिलर शेप्स हैं, इसलिए माइंड उसको एक साथ देखता है। तो एक सिंगल ट्राइंगल की जगह हमें एक पूरा शेप दिखता है। देन कंटिन्यूअंस वही है कि ये अलग अलग तीन सर्कल्स हैं बट हम उसको एज अ कंटिन्यूएशन देखते हैं। क्लोजर में भी वही है कि जब भी एक इनकम्प्लीट ऑब्जेक्ट हम देखते हैं आवर माइंड ट्राइज टू कंप्लीट दैट ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए इसमें गैप है बट हमें ट्रायंगल दिखता है लास्ट वाले फिगर से बिकॉज आवर माइंड इज ट्राइंग टू कंप्लीट इट। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स आवर माइंड प्लेज गेम्स विद अस जिनको इल्यूजन्स बोलते हैं। तो इल्यूजन्स जो है मोस्टली जेस्टॉल साइकोलॉजी पे बेस्ड होता है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट। तो दिस इज बेसिकली हाउ जेस्टॉल साइकोलॉजी वर्क्स। अब आपको समझ में आ गया है कि डिफरेंट ब्रांचेस क्या क्या होते हैं। तो उसी पे से पर्सपेक्टिव्स भी आते हैं। तो जैसे हमने साइको एनालिटिक देखा था जिसमें वो सोफे पे लेटे होते हैं, तो साइको डायनेमिक भी साइको एनालिटिक साइकोलॉजी पे ही बेस्ड है। तो साइको डायनेमिक में इड, ईगो, सुपर ईगो आता है। ये भी हम आगे कवर करेंगे डिटेल में। पर साइको डायनेमिक में बेसिकली हम अनकॉन्शियस माइंड और बचपन में क्या चल रहा है ये इसमें देख रहे हैं। बिहेवियरल में क्या था? वेरी गुड। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट यूज कर रहे हैं तो दैट इज बिहेवियरल साइकोलॉजी। कॉग्निटिव में अटेंशन था, मेमोरी था, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कॉग्निटिव प्रोसेसेस थे जिसमें से वी वर कमिंग टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक में क्या था? हाँ, इंडिविजुअल पर्सन पे उसके करंट प्रॉब्लम्स क्या है और क्या हम करंट उसकी हेल्प कर सकते हैं, दैट इज ह्यूमनिस्टिक। ठीक है। एवोल्यूशनरी जो है उसमें जैसे आप देख सकते हैं दिस में इन दिस वी गो इनटू द एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव कि हम इवॉल्व हुए हैं और हमारा जो भी बिहेवियर होता है वो एवोल्यूशनरी होता है। जैसे अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो हो सकता है कि हाँ पुराने जमाने में हम एक दूसरे से झगड़ना पड़ सकता था, compete करना पड़ता था फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज, दैट्स वाई हमको गुस्सा आता है। या पेशेंट को एंजाइटी होता है, बैठे बैठे बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि बैठे बैठे हमें घबराहट होने लगती है। तो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी सेज कि ये एवोल्यूशन का पार्ट था कि पुराने जमाने में टाइगर्स आते थे जिनको देख के हमें डर घबराहट लगती थी और हम फिर भाग जाते थे। दिस हेल्प्स अस सर्वाइव। तो ये जो डर घबराहट हो रहा है ये एवोल्यूशन का ही पार्ट है और ये खत्म हो जाना चाहिए था पर कुछ लोगों में नहीं हो पा रहा है, इसलिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। एंड क्रॉस कल्चरल मीन्स कि साइकोलॉजी जो है अलग कल्चर्स में अलग अलग होती है। जैसे एक इंडियन वे ऑफ डीलिंग विद साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा हम ट्रेडिशनल मेडिसिन पे जाते हैं, वी यूज अ लॉट ऑफ योगा, ब्रीदिंग टेक्निक्स। ये सेम वाला हम बाकी जगह नहीं कर सकते क्योंकि मे बी उनके कल्चरल पर्सपेक्टिव में अलग वे से स्ट्रेस को डील किया जाता है या देखा जाता है। तो इन साइकेट्री, इन साइकोलॉजी, कल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So that is why cross-cultural perspective is also very important. अब एक और इम्पोर्टेंट है बायोलॉजिकल फैक्टर। सो कल्चरल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो है ही, लेकिन अभी देखा गया है कि साइकोलॉजी में बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी इम्पोर्टेंट है।
तो आई डोंट नो इफ यू वॉच्ड मुन्ना भाई एमबीबीएस, बट उसमें वो बोलता है कि कुछ केमिकल लोचा है दिमाग में। तो दैट इज एक्चुअली क्वाइट एक्यूरेट, कि आपके दिमाग में कुछ कुछ केमिकल्स होते हैं, उनको हम न्यूरो बोलते हैं, और ये न्यूरो से दिमाग में सर्किट्स बनते हैं। सो ऑल दीज न्यूरो योर सर्किट्स, ये सब एक बायोलॉजिकल पार्ट होता है। तो साइकोलॉजी इज नॉट जस्ट एट योर सबकॉन्शियस लेवल या कल्चरल लेवल। आजकल देखा गया है कि ब्रेन में भी कुछ प्रोसेसेस होते हैं, ब्रेन में भी कुछ चीजें कम ज्यादा होती है, जैसे सेरोटोनिन कम होता है तो पेशेंट्स डिप्रेस्ड होते हैं, अनहैप्पी होते हैं। डोपामीन बढ़ता है तो पेशेंट्स एग्रेसिव होते हैं। तो इसीलिए बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज वन ऑफ द बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ लुकिंग एट साइकेट्री एंड साइकोलॉजी। इतना समझ में आ गया? तो इसमें से ही, ये पर्सपेक्टिव्स में से अलग अलग फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी निकली है, तो वो भी आपको पता होना जरूरी है। जैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी फोकसेस ऑन द कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो आपने सीखा। फोरेंसिक साइकोलॉजी होता है जिसमें हम क्राइम सॉल्व करते हैं, आगे देखेंगे। सोशल साइकोलॉजी होता है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। सो देर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, बिकॉज इट इज सो वाइड। अब उसको हम अलग अलग ब्रांचेस में या सब स्पेशलाइजेशंस में लेके जा चुके हैं। तो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या हुआ, जिसमें अगेन हम न्यूरो स्टडी कर रहे हैं, ब्रेन के लेवल पे क्या हो रहा है वो स्टडी कर रहे हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल हर स्कूल में, हर कॉलेज में एक साइकोलॉजिस्ट होता है। तो इट इज नॉट जस्ट टू डील विद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, कि बच्चे आगे कैसे पढ़ सकते हैं, करिकुलम में हम ऐसी चीजें ला सकते हैं जिससे उनको पढ़ाई इजी हो, या वो माइंड डेवलप उनका ज्यादा अच्छा हो। तो दिस इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी भी है, जिसमें इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस जो हैं उनको कैसे बढ़ाया जा सकता है। इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें थाउजेंड्स एम्प्लॉयज होते हैं, तो सारे एम्प्लॉयज का साइकोलॉजिकल वर्कअप कैसे अच्छा रखना है, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाना है, आउटपुट कैसे बढ़ाना है। तो दिस इज इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी थोड़ा बहुत फिलोसफी के टुवर्ड्स जाता है, कि सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, और सोसाइटी से कैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड सोसाइटी कैसे डील करती है। तो दिस इज एट द सोशल लेवल। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज बचपन में कैसे हमारा साइकी डेवलप होता है। तो बचपन में बच्चों का क्या क्या थिंकिंग होता है, फिर वो जैसे जैसे बड़े होते हैं वो थिंकिंग कैसे चेंज होता है। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लिनिकल साइकोलॉजी बहुत छोटा ब्रांच है, पर ये है जो हम यहाँ देखते हैं। तो जो क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल्स में देखते हैं, दैट इज क्लिनिकल साइकोलॉजी। पर्सनालिटी को भी आजकल काफी अटेंशन मिल रहा है, तो पर्सनालिटी को स्टडी करके पर्सनालिटी पे जस्ट फोकस करने वाली ब्रांचेस भी होती है। ठीक है? तो दिस इज जस्ट अ जिस्ट। अगेन, अगर आपको याद रखना है तो यू कैन लर्न इट एज अ थियोरेटिकल ब्रांच एंड अप्लाइड ब्रांच। तो थियोरेटिकल में आती है जनरल, एबनॉर्मल, डेवलपमेंटल, सोशल, और अप्लाइड यानी बेसिकली आप इसमें कुछ कर रहे हैं, तो इसमें आता है क्लिनिकल, एजुकेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल। एंड पिलर्स ऑफ साइकोलॉजी भी मोर और लेस वही है, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, वी हैव सोशल, मेंटल एंड देन फिजिकल हेल्थ। तो वही जो देखा था, कॉन्सेप्ट वही है, बस इसके पिलर्स अलग अलग हैं, और ये 5 पिलर्स पे बेसिकली साइकोलॉजी चलता है। अब मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, मेथड्स मीन्स कि आपने अब समझ तो लिया कि क्या क्या ब्रांचेस है, क्या क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, आप स्टडी कैसे कर सकते हैं साइकोलॉजी को, या सामने वाले को कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में आपको कुछ नहीं करना, यू आर जस्ट सिटिंग एंड ऑब्जर्विंग। तो ऑब्जर्वेशन में एक आता है इंट्रोस्पेक्शन। तो इंट्रोस्पेक्शन वर्ड पता है क्या होता है? आजकल ये काफी चल रहा है वैसे इंट्रोस्पेक्शन, कि अपने अंदर झांक के देखना।
बेसिकली। तो उसमें बोलते हैं कि आप शांति से बैठिए, सिट विथ योर ओन थॉट्स, अपने आप को समझिए। फॉर एग्जाम्पल अगर दिन भर आप कॉलेज करके या काम करके आ रहे हैं, तो 10 मिनट बैठना है कि दिन भर क्या क्या हुआ था, हाउ डिड आई रिस्पॉन्स, ऐसा कोई इवेंट हुआ था जिससे मुझे खुशी मिली थी, गुस्सा आया था। तो बेसिकली खुद का एनालिसिस खुद ही करना है। तो दैट इज इंट्रोस्पेक्शन। अगर कोई और आपका एनालिसिस कर रहा है, साइकोलॉजिस्ट बैठ के आपको पूछ रहा है कि हाँ जब एग्जाम्स आता है तो आपको कैसा लगता है, या जब कोई टीचर डांटता है तो आपको कैसा लगता है, तो दैट इज एक्सट्रोस्पेक्शन, कि एक्सटर्नली कोई देख रहा है, इंटरनली आप देख रहे हो। एक्सपेरिमेंटल में हम कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जैसे पेशेंट्स को कुछ गेम्स देते हैं कि ये गेम्स खेलो, या कोई मैथमेटिकल चैलेंजेस देते हैं, और फिर देखते हैं कि अलग अलग पर्सन्स कैसे डील करते हैं अलग अलग सिचुएशन से या अलग अलग गेम्स। दिस इज ऑब्जर्वेशन। एक्सपोजिशन में हम एक्चुअली एक्टिवली कुछ कर रहे हैं। तो जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल है केस हिस्ट्रीज। पेशेंट को आप बैठ के पूछ रहे हो कि हाँ आपको फीवर आया था, तो फीवर आने के बाद आपको कैसा लगा था, या आपकी नींद कैसे डिस्टर्ब हुई थी। तो इसमें आता है केस हिस्ट्री, क्लिनिकल, स्टैटिस्टिकल, डेवलपमेंटल। तो जो भी बेसिकली हॉस्पिटल में हो रहा है या एक्टिवली हम पेशेंट से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, दैट इज योर एक्सपोजिशन। ठीक है। तो अब आते हैं कुछ कुछ एमसीक्यूज पे, इससे पता भी चलेगा कि क्या समझा है और क्या नहीं समझा। सो द फर्स्ट एमसीक्यू इज, which of the following specializations in psychology deals with the diagnosis and treatment of mental disorder? So क्या लगता है आपको? फिर से सोचो सारे। एक्सपेरिमेंटल में हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, डायग्नोसिस भी कर रहे हैं और ट्रीट भी कर रहे हैं, है ना? तो क्लिनिकल। ठीक है। तो जब भी एमसीक्यूज आते हैं ना, एकदम जल्दबाजी में मार्क मत करो, थोड़ा सोचो। दो जो ऑप्शंस होते हैं, दो वाले हमेशा सिमिलर होंगे। जैसे क्लिनिकल और एक्सपेरिमेंटल जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है, इवन इन योर नीट दो वाले होंगे जो कंफ्यूजिंग रहेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है और अच्छे से पढ़ना। ठीक है। द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम इटालियन, ग्रीक, लैटिन। हाँ। तो ये भी सब एक जैसा ही लगता है हमें, इटालियन, ग्रीक और ये सब, बट याद रखो मोस्टली लैटिन और ग्रीक से डिराइव होते हैं जो भी मेडिकल टर्म्स होता है। तो साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, साइकी एंड लॉजी। ठीक है। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डैश एंड डैट। गुड। तो इसीलिए इसमें आप देखिए दो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो दोनों पे ही ध्यान रखना है। अगर सिर्फ एक आप देखोगे तो ऑप्शन बी भी ठीक लगने लगेगा फिर, या सिर्फ मेंटल स्टेट देख लोगे सी में और फिजिकल आप देखोगे नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो पूरा अच्छे से पढ़ना है और एक एक वर्ड पे ध्यान देना है। ये आज के डिस्कशन में मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, पर दिस इज जस्ट अगेन कॉमन सेंस। अ लॉट ऑफ टाइम्स आपको एमसीक्यूज ऐसे आ सकते हैं जो आपने पढ़े ना हो या जो हमने आपको पढ़ाए ना हो, पर थोड़ा बहुत कॉमन सेंस अगर लगा लोगे तो भी ये यूज हो सकता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है। तो इसीलिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो कभी नहीं देखा है या कभी ये टॉपिक पढ़ा नहीं है, तो भी डरना नहीं है, थोड़ा सा अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। यूजुअली इजी होता है, लॉजिक थोड़ा लगा लो तो हो जाता है। ठीक है। एंड विद दिस आई आज का तो लेक्चर खत्म होता है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। साइकोलॉजी बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसीलिए वी हैव डिवाइडेड इन टू टू लेक्चर्स। आज का लेक्चर फिर से जाके थोड़ा रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास के पहले। तो वी विल रिवाइज पिछली क्लास में क्या हुआ था, और फिर अगेन थोड़ा और साइकोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग में हम डाइव करेंगे। तो सेम टाइम सेम प्लेस। पर आज के लेक्चर्स में किसी को कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है?
किसी को कुछ समझ में नहीं आया, कुछ कॉन्सेप्ट है जो फिर से समझाना है या फिर से बताना है? नहीं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। एंड नेक्स्ट लेक्चर में भी कोई डाउट्स है जो आज आपको समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम वो डाउट्स ले सकते हैं। So today we are going to continue that same discussion. So I am Dr. Swaleha Mujawar, Assistant Professor here. And whenever we talk about psychology, we start with definition, we start with importance. Last time we had seen a little bit about the history of psychology, schools, perspectives, different branches. ठीक है, ये सब हो गया है. Methods, MCQs, question answers. All this was covered in the previous lecture, so that you can again check on YouTube and revise. Today we are going to learn about the role of psychology in various fields. So this is very interesting कि psychology everyday life में psychology कहाँ कहाँ आता है, तो बहुत interesting है, बहुत practical है, तो मजा आएगा पढ़ने में. So just pay attention and last में हम थोड़ा सा देखेंगे कि अलग अलग jobs क्या क्या है, ठीक है. Then we'll look at some questions. आपको एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड सम एमसीक्यूज आल्सो. सो साइकोलॉजी पुराने जमाने में या व्हाट वाज कॉल्ड एज ट्रेडिशनल साइकोलॉजी, इट यूज्ड टू फोकस ऑन मेंटल इलनेसेस. सो ट्रेडिशनल साइकोलॉजी में देखते थे कि जो भी मेंटली इल है उसको -10 से 0 तक या नॉर्मल तक लेके आए. बट नाउ द करंट साइकोलॉजी और अभी अपकमिंग साइकोलॉजी जो है वो है पॉजिटिव साइकोलॉजी. सो पॉजिटिव साइकोलॉजी है ना, नॉर्मल लोग हैं पर नॉर्मल लोगों को भी और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे आप हैं, मैं हैं, बट एवरीडे लाइफ में हम साइकोलॉजी यूज करके how can we use it to our advantage. So this is positive psychology. So even in mentally well-being people, we can use psychology. So let's dive into what all aspects are there, या हम क्या क्या कर सकते हैं psychology में. So सबसे पहले तो education. So psychology has a very important role in education. All of you are having psychology lectures, but even in schools, psychology is being taught. Especially children are taught coping skills, and most of the schools, जो बड़े बड़े schools होते हैं जहाँ पे psychologists available है, most of the schools will have at least one psychologist, so that if any child has any issues, any problems, they can go to the psychologist, and then the psychologist can refer the child if they feel कि child को ज़रूरत है, तो फिर वो साइकेट्रिस्ट के पास भेजते हैं या कोई हॉस्पिटल में भेजते हैं. तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट एजुकेशन में साइकोलॉजी बहुत ऊपर आ रहा है. तो एक तो टीचिंग में हम यूज कर सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स क्या क्या है, डिफरेंट स्टूडेंट्स को कैसे डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग हम कर सकते हैं, क्या क्या सेटिंग्स में लर्निंग या टीचिंग कर सकते हैं. जैसे पहले आई एम श्योर आपके जो 10 साल पहले सीनियर्स होंगे उनको चौक बोर्ड पे पढ़ाया जाता था, अभी हम पीपीटी पे पढ़ा रहे हैं, प्रोजेक्टर पे पढ़ा रहे हैं. तो दिस मेथड ऑफ लर्निंग वाज प्रोबेबली फाउंड टू बी बेटर बिकॉज इसमें एक ऑडियो विजुअल आ रहा है, इसमें हम फोटोज वगैरह डाल सकते हैं. तो द सेटिंग्स ऑफ लर्निंग, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स, जनरल टीचिंग स्ट्रैटेजीज कि किस वे में हम पढ़ाएं जिससे स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा फायदा हो या स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा नॉलेज गेन कर सके. तो जनरल टीचिंग स्ट्रैटेजीज और ये सब हम यूज करते हैं. इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल साइकोलॉजी बिकॉज उसमें अगेन हम इलनेसेस नहीं देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स नहीं देख रहे हैं. स्टडीज को लेके भी हाउ टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स, हाउ टू स्टडी, हाउ टू हेल्प देम लर्न, हाउ टू हेल्प देम डेवलप, तो ये सब आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में. एंड हमारा मेन एम होता है कि लाइफ लॉन्ग हम बच्चे को लर्निंग करना सिखाएं, या वी टीच देम लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड गुड लाइफ गोल्स इन जनरल.
So we have to understand from an educational psychology point of view what are the individual differences, कि हर एक बच्चा सेम नहीं होता है, हर एक का लर्निंग कैपेसिटी सेम नहीं है, एटीट्यूड कैसे है लर्निंग का, और जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं बच्चों के उनको हम सिखाएं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग करें, अंडरस्टैंड द लर्निंग प्रॉब्लम्स। जैसे तारे जमी पर तो देखी होगी सबने, है ना, कि वो बच्चा बहुत ब्राइट था, उसमें बहुत कैपेबिलिटीज थी, बट टीचर्स उसको समझ नहीं पा रहे थे। तो अगर कोई अच्छा टीचर हो जिसको बच्चे की साइकोलॉजी समझे, तो वो हर एक बच्चे की जो भी कैपेसिटी है, जो भी टैलेंट है, उसको वो बाहर ला सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सब पढ़ाई में अच्छा नहीं तो उसको फेल कर दो। दैट इज नॉट द एम। एम इज हाउ वी कैन डेवलप द स्टूडेंट्स। सो दिस इज व्हाट एजुकेशनल साइकोलॉजी इज। सो एजुकेशनल साइकोलॉजी सिर्फ टीचर्स और लर्नर्स के लिए भी नहीं है, टीचिंग मेथड्स भी हम उसमें देखते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी करते हैं। लाइक अ लॉट ऑफ स्कूल्स हैव आईक्यू टेस्ट, तो वो आईक्यू टेस्ट करते हैं, अगर किसी का कम आता है आईक्यू तो देन उसको उस हिसाब से हेल्प दे सकते हैं। तो दीज आर जस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट, वो स्क्रीन कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रहे हैं बच्चों में, तो देन अगेन दे कैन रेफर और दे कैन ट्रीट ऑन देयर ओन लेवल। पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स भी बच्चों में आजकल काफ़ी देखा जा रहा है, स्पेशली विद द यूजेज ऑफ फोन एंड अ लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम। तो ये सारी चीज़ें आर पार्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, डेली डेली और चीज़ें ऐड हो रही है एजुकेशनल साइकोलॉजी में, तो इट्स अ गुड थिंग। नाउ कमिंग टू हेल्थ केयर। हेल्थ केयर यानी जो हॉस्पिटल्स में आप और मैं पेशेंट्स को देखने वाले हैं, ओपीडी में, वार्ड सेटिंग्स में, तो वहाँ पे साइकोलॉजी का क्या क्या रोल है, या साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे क्या करता है। तो अगेन बहुत सारी चीजें हैं। लेट्स स्टार्ट विथ इंक्रीजिंग सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस। तो पेशेंट साइकेट्री का हो, मेडिसिन का हो, ऑर्थो का हो, अ लॉट ऑफ टाइम्स पेशेंट को सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि अब मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, अब मैं 1 महीने तक बेड रिडन हूँ, तो मेरा क्या होगा। तो उनका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी लो होता है। समटाइम्स दे हैव प्रॉब्लम्स इन द फैमिली, some relationship problems, so we can help improve that. We can increase the wellness and life satisfaction in general. कोई भी डिसीज होती है तो वेलनेस कम ही होता है, लाइफ सेटिस्फैक्शन कम होता है, रिड्यूस स्ट्रेस यस, रिकवरी फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर यस। पर ये एक ही पॉइंट है, जब भी हम सोचते हैं कि साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, हमें लगता है सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर से करते हैं, बट नहीं, ये बाकी भी चीजें हैं, नॉट जस्ट मेंटल। दे हेल्प विथ कोपिंग ऑफ मेडिकल कंडीशंस ऑल्सो, गोल सेटिंग एंड अटेनमेंट, कि हाँ ठीक है आप 1 महीना बेड रिडन हो, 1 महीने बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, वॉक करना स्टार्ट करेंगे, 30 मिनट्स वॉक करेंगे, 45 मिनट्स, 1 आवर। तो दीज आर द गोल सेटिंग्स दैट वी डू and increase motivation to change because they are facing some adjustment problems। तो हम उनको मोटिवेट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं एडजस्ट करने में, जो भी उनकी लाइफ में चेंजेस हो रही है उनके साथ। So these are so many things that a psychology can do in healthcare. एंड आर की कॉन्सेप्ट्स, की गोल्स हमारे हैं, एक तो हेल्थ प्रमोट करना है विच इज द मेन फैक्टर, बट बायो साइको सोशल, yesterday also we had seen, तो हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल, सोशल, तीनों एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, एंड सोशल एस्पेक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू कॉग्निटिव फैक्टर्स, कॉग्निटिव यानी बेसिकली आपका दिमाग कैसा चल रहा है, दिमाग के प्रोसेसेस कैसे चल रहे हैं। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स जब कोई बीमार होता है तो उसका अटेंशन कंसंट्रेशन ठीक नहीं होता है, उसको कभी कभी मेमोरी प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो भी हम हेल्प करते हैं। एंड देन बिहेवियरल फैक्टर्स, बिहेवियरल फैक्टर्स ये ना वही, अगर पेशेंट बेड रिडन है तो थोड़ा चिड़चिड़पना एक्सपेक्टेड है, उसका नींद, खाना सब चेंज हो जाता है। तो हाउ टू हेल्प द पेशेंट चेंज हिज बिहेवियर, कि जो इरिटेबिलिटी है या जो डिप्रेशन है वो सबको कैसे डील कर सकते हैं, वो भी इसी में आता है। Then again the biopsychosocial, I know this is a repeat of yesterday's things, but just
bear with me. In biological, we look at physical health, genetic vulnerability, the drug effects, जो भी medicines patient ले रहा है. Social में family circumstances कैसे हैं, family relationships कैसे हैं. Psychological में again coping skills, social skills, self esteem. So ये सारी चीजें हमें देखनी होती है. Not just the physical health, not just the mental health. Whenever we are talking to the patient, we talk about all these things. हम ये सारी चीजें पेशेंट से पूछते हैं और जो भी पेशेंट की प्रॉब्लम्स हमें लगता है कि चलो फिजिकल प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, फिर उन पे हम वर्क करते हैं और कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट कम्स आवर बिजनेस साइकोलॉजी. So this is also a very upcoming branch, very new branch. तो as you can see in the cartoon, दो एम्प्लॉयज हैं जो वाटर फाउंटेन के पास खड़े होके गॉसिप कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, और एक है जो सो रहा है, काम नहीं कर रहा है. एंड ये बेचारा बॉस बैठ के सोच रहा है कि हो क्या रहा है कंपनी में. सो दिस इज व्हाट बिजनेस साइकोलॉजी इज. कि आपके अगर एक कंपनी है, ऑफिस है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो हाउ कैन यू मेक श्योर कि मैक्सिमम इफेक्टिवनेस है, कि कोई गॉसिप नहीं कर रहा है एक दूसरे के बारे में, या कोई प्रोडक्टिविटी कम नहीं हो रही है. तो बिजनेस साइकोलॉजी स्टार्ट्स विद रिक्रूटमेंट. फर्स्ट, there is usually a psychologist or person who has some psychology background जो देखता है कि बिजनेस के साथ इस नए एम्प्लॉय का साइकोलॉजी असाइन हो रहा है, नहीं हो रहा है. क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि ये हमारे बिजनेस के साथ कोप नहीं कर पाएंगे, या इनकी जो थिंकिंग और साइकोलॉजी है हमारे बिजनेस और थिंकिंग के साथ नहीं अलाइन हो रही है, तो फिर उसे रिक्रूट करने का कोई फायदा नहीं. तो रिक्रूटमेंट में a lot of times psychological aspects are also seen. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी. देन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कि एक साल हो गया तो एक साल में क्या क्या इनपुट्स थे, क्या क्या आउटपुट्स थे, वो इवैल्यूएट करता है. देन वेरी इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड वर्क लाइफ, कि अगर आपके ऑफिस में 10 लोग काम कर रहे हैं, वो कितने सेटिस्फाइड है, कितने खुश हैं उस कंपनी में. एंड देन अ जनरल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट. तो पूरी कंपनी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सब चीजें साइकोलॉजी के अंदर आती है. एंड बिजनेस साइकोलॉजी में बहुत सारे अलग अलग ट्रेनिंग फॉर्मेट्स आ गए, अलग अलग बुक्स आए हैं बिजनेस साइकोलॉजी पे. सो इफ एनी ऑफ यू इज इंटरेस्टेड, यू कैन रीड दोज बुक्स ऑल्सो. सो वन इज इंडिविजुअल असेसमेंट. परफॉर्मेंस अप्रेजल हम कर सकते हैं. पर्सनल रिक्रूटमेंट, जॉब एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, क्वालिटी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ. तो ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ योर बिजनेस साइकोलॉजी और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी. सो इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि एंगेजमेंट है, प्रोडक्टिविटी है, टीम बिल्डिंग है. And usually this is done by the psychologist. Overall large scale पे, business scale पे, there are strategic psychologists जो strategies बनाते हैं कि हम business को कैसे बढ़ा सकते हैं, या business लो चल रहा है, या customers आ नहीं रहे हैं, तो customers लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं. तो focus is usually on market कैसा चल रहा है, business operations कैसे हैं, स्टेक होल्डर्स को हम कैसे एंगेज रख सकते हैं, कॉर्पोरेट गोल्स कैसे मीट कर सकते हैं. तो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. एंड अगेन इसका साइकोलॉजी काफ़ी अलग होता है, और इसके लिए भी बिजनेस साइकोलॉजिस्ट अलग होते हैं जो बिजनेस को डेवलप करने में मदद करते हैं और आगे बढ़ाने में मदद करते हैं. ठीक है. इसमें थोड़े बहुत आते हैं आपके ह्यूमन रिसोर्स, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, अगेन साइकोलॉजिस्ट भी इसमें आ जाते हैं. एंड मोस्टली फोकस होता है ऑन प्रोडक्टिविटी, कि बेसिक हम बिजनेस की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं. नाउ कमिंग टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज क्रिमिनल साइकोलॉजी, कि लोगों को पता है कि ये गलत है,
पर फिर भी वो गलत काम करते हैं, उनको पता है कि जेल जा सकता है, पर वाई डू क्रिमिनल्स डू दीज थिंग्स, या वाई डू पीपल डू क्रिमिनल थिंग्स? सो क्राइम के भी बायोसाइकोसोशल एस्पेक्ट्स हैं. Whenever somebody commits a crime, डिपेंड्स अपॉन द एज एंड जेंडर, तो देखा गया है कि यंग एज में ज्यादा क्राइम्स होते हैं, मेल्स में ज्यादा क्राइम्स होते हैं. समटाइम्स इट इज जेनेटिक्स ऑल्सो. सो जेनेटिकली people might be predisposed to aggression, they might be predisposed to taking shortcuts, और उन्हें लगता है कि हम अगर कुछ गलत करेंगे तो हमारे कोई consequences नहीं होंगे. तो ये सबका एक जेनेटिक बेसिस भी होता है. देन सम फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस ऑल्सो, कि कुछ गलत करके उन्हें बुरा नहीं लगता है, रिमोर्स नहीं होता है, गिल्ट नहीं होता है. तो दीज आर ऑल्सो बायोलॉजिकल लेवल. टिश्यू हेल्थ पे भी a lot of times when people are sick, या they are in need of something, या sometimes they have addictions, then they also go into these criminal activities. साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो समटाइम्स मेंटल हेल्थ खराब होने की वजह से भी लोग क्राइम करते हैं. तो मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ ऑल्सो प्लेज अ रोल, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑल्सो. सोशियोलॉजिकल, अगेन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, अगर रिलेशनशिप खराब हो, सोसाइटी से उसको शन कर दिया जाए, या सोसाइटी से उसको लगे कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, सोसाइटी ने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं बदला लूंगा सोसाइटी से. सो दिस कैन ऑल्सो हैपन. एंड सोशो इकोनॉमिक्स ऑल्सो. रोल ऑफ साइकोलॉजी इन करियर काउंसलिंग. सो करियर काउंसलिंग में भी हम क्या क्या कर सकते हैं? तो ऑल्सो एट द एंड ऑफ द लेक्चर एमसीक्यूज होंगे, तो जो लोग वहाँ हंस रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं, आप लोगों पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट टू यू. नाउ कमिंग टू द करियर काउंसलिंग. करियर काउंसलिंग में सबसे पहले हम करते हैं गोल सेटिंग. सो गोल सेटिंग में वी डिटरमाइन द स्किल्स. अ लॉट ऑफ, आई डोंट नो आप लोग में से कोई गया था या नहीं गया था, बट बहुत सारे लोग 12th स्टैंडर्ड के बाद, 10th स्टैंडर्ड के बाद करियर काउंसलर्स के पास जाते हैं. द पेरेंट्स वांट कि बच्चे का जो स्किल है, जो एप्टीट्यूड है, वो उस स्किल और एप्टीट्यूड वाले करियर में अगर जाए तो बेटर है, बिकॉज करियर अगेन इज अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट. तो अगर उसे लगे कि अब मैं ये करियर में आ गया, अब कुछ कर नहीं सकते, या अब मैंने ये कर लिया, अब आगे मैं क्या करूंगा, या इतने मेरे लाइफ वेस्ट हो गए हैं, तो इससे बेटर है कि अपने स्किल्स, एजुकेशन, ट्रेनिंग के हिसाब से अपने गोल सेट करें. तो दैट इज वाई करियर काउंसलिंग ऑल्सो हैज कम अप एज अ वेरी लुक्रेटिव ब्रांच. स्पेशली बड़े बड़े सिटीज में तो करियर काउंसलर्स होते हैं. यूजुअली वो सेल्फ असेसमेंट करते हैं कि करियर इवैल्यूएशन, स्किल इवैल्यूएशन, पर्सनालिटी इवैल्यूएशन ऑल्सो. कुछ कुछ स्पेसिफिक पर्सनालिटीज होती है स्पेसिफिक करियर्स के लिए, तो आप अपने पर्सनालिटी के हिसाब से करियर लेंगे तो अच्छा रहेगा. देन अगेन इंडस्ट्री असेसमेंट, कि जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें क्या क्या नए स्किल्स आ रहे हैं, क्या क्या नए करियर्स हैं जो अपकमिंग है, जिसको हम इस सूटेड इंडिविजुअल को डाल सकते हैं. एंड देन करियर मैचिंग, सो वी आर मैचिंग द person with the industry. So this is what a career counselor basically does. So coming to the psychological aspects, सबसे पहले तो काउंसलिंग कर सकते हैं. अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि हाँ मुझे कुछ करियर करना ही नहीं है या कुछ करना नहीं है, आई एम कंफ्यूज्ड, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, तो देन सबसे पहले हम काउंसलिंग के लिए भेजते हैं. If there is some abnormal behavior, we try to change it again through counseling or some activities or some psychotherapy, personality assessment, guidance, mentoring, coaching, and then comprehend others' emotions also. A lot of times पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं कि ये स्पेसिफिक करियर लो, पर बच्चे को नहीं लेना होता है, तो ये सब भी करियर काउंसलिंग का पार्ट है, उसमें आता है. कमिंग टू द नेक्स्ट रोल ऑफ साइकोलॉजी इन मिलिट्री साइंस. तो मिलिट्री में भी काफी साइकोलॉजी का एस्पेक्ट्स है. आई नो ऐसे देख के लगता नहीं कि मिलिट्री में साइकोलॉजी क्या करेगा, पर बहुत सारी चीजें हैं. नेवी हो, आर्मी, एयरफोर्स, स्पेशल फोर्सेस, मरीन, all these things require a good psychological aspects also.
सो आर्मी में बहुत ज्यादा कोई भी एस्पेक्ट देखा जाए तो हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस होते हैं, उन्हें जाके कॉम्बैट करना होता है, घर से वो दूर होते हैं, और कॉम्बैट लेवल्स ऐसा भी नहीं होता है कि काफी इजी काम है, और लॉट ऑफ टाइम्स हैवी मशीनरी वो यूज कर रहे होते हैं। तो जो भी उनके हाइटेंड अलर्टनेस है, जो फिजिकल एग्जर्शन उन्हें करना होता है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से एक्सपोजर करना होता है, तो उसमें उनको कैसे साइकोलॉजिकली हम प्रिपेयर करें या साइकोलॉजिकली उनको रेडी करें टू डील विथ ऑल दीज सिचुएशंस। सो जो भी टाइप का फोर्स हो, हर एक में एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है जिसमें उनको कैसे डील करना है स्ट्रेसफुल सिचुएशंस सिखाया जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर्मी। एंड सिर्फ साइकोलॉजिस्ट नहीं, बहुत अलग अलग टाइप्स के अभी टेक्निक्स आ गए जिससे हम इनको यूज कर सकते हैं या इनको हेल्प कर सकते हैं। जैसे AR VR आ गया, तो ऑगमेंटेड रियलिटी, विजुअल रियलिटी में उनको गेम्स जैसा ही देते हैं जहाँ पे उनको जाके लड़ना होता है, फाइट करना होता है। A lot of AI and robotics are also being used। तो वेरेबल टेक होता है, वेरेबल डिवाइसेस होता है, और उनको फिर अलग अलग सिनेरियोज देते हैं। तो उसमें अगर उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, पल्स बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, तो स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए, स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करके मैक्सिमम वो अलर्टनेस अचीव किया जाए, ये सब उसी का पार्ट होता है। So digital mental health interventions आए, they help in improve decision making also, strategy tactical कैसे करना चाहिए, क्या strategies बनाना चाहिए, उसमें भी help होता है। And basically resilience in general, कि difficult situations को कैसे handle करें, उससे बाहर कैसे निकले, ये सब भी psychology का ही part है। ठीक है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ल्यूक्रेटिव ब्रांच अगेन। अगेन एनी टाइप ऑफ स्पोर्ट्स हो, वो बैडमिंटन हो, साइकिलिंग हो, बास्केटबॉल हो, मोस्ट ऑफ दीज स्पोर्ट्स आर इन्वॉल्विंग अ साइकोलॉजिस्ट। So what are the roles and responsibilities of a sports psychologist? First, help athletes mentally recover, जो भी उनकी इंजरीज हो, फिजिकल इंजरीज हो, मेंटल इंजरीज हो, जो भी उनके साथ गेम में बुरा हुआ है, उनसे बाहर निकलने में हेल्प करे। मेंटल स्किल्स टीच करे, तो योगा, मेडिटेशन, अगेंस्ट स्ट्रेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स, we help them enjoy the game so that again उनकी productivity काफी high हो, and help them enhance the performance by using various psychological techniques. Now coming to the jobs, तो now that we know कि psychologist का role क्या क्या होता है, इसी role पे से you can just contemplate कि क्या क्या jobs हो सकते हैं। तो एक हो गया कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट, विच विल हेल्प इन बिजनेस एंड अदर इंडस्ट्रीज। स्कूल साइकोलॉजिस्ट हो गया, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का पार्ट है। क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, so this is also quite helpful. Sports psychologist, a counselor in general. Sometimes art therapists are also there, so they use art to use therapy. तो साइकोलॉजी रिलेटेड जॉब्स बहुत सारे हैं, बहुत अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट सिर्फ हॉस्पिटल्स में काम करेंगे या मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में काम करेंगे। मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ मोस्ट जॉब्स डू रिक्वायर अ साइकोलॉजिस्ट, एंड जितने भी बड़े स्कूल्स हैं, बड़े इंडस्ट्रीज हैं, वो तो साइकोलॉजिस्ट को रखते ही रखते हैं। ठीक है। सो विद दिस वी फिनिश विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहती। अभी एग्जाम्स में देखते हैं, तो जब भी आपके एग्जाम्स आएंगे, तो एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस कैन बी जस्ट द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी क्या क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट स्कूल्स, पर्सपेक्टिव, मेथड्स, ब्रांचेस, सब कुछ वो कवर हुआ ही है पिछले लेक्चर में, तो ये पूछ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन कैन बी just the definition, understanding and nature of psychology. So अगर ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन आता है अबाउट इन जनरल साइकोलॉजी, तो जो फर्स्ट लेक्चर था, सेकेंड लेक्चर था, दोनों का
नोट्स आप बना लीजिए, कंबाइन करके वो लिखना है। रोल ऑफ साइकोलॉजी इन वेरियस फील्ड्स, अगेन दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये भी पूछ सकते हैं। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड, दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच विल बी आस्क्ड। सो आपके इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, और फिर कुछ एमसीक्यूज होते हैं। सो दीज आर द शॉर्ट एंड लॉन्ग। अब आते हैं एमसीक्यू पे, ठीक है? तो यस, ये वाली रो 1 2 3 4, हो जाओ, खड़े हो जाओ। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बताओ। हम्म, ठीक है, बैठो, नेक्स्ट खड़े हो, पढ़ो। तुमने लेक्चर में नहीं भी अटेंशन पे किया, कॉमन सेंस यूज कर सकते हो। आंसर इज डी। ओके, गुड, सिट। रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर। General psychology deals with D, fundamental, that is the all branches of psychology. ठीक है? Developmental psychology अलग होता है, personality psychology अलग होता है. Answer is D. ठीक है, next. ये पिछली क्लास का है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है. This was covered in the last lecture actually. A नहीं, C भी नहीं, D, D. Whenever, हाँ, जो cognitive word है ना, that is thought process, different thought processes. So thought process is the main component of cognitive perspective or cognitive psychology. ये भी common sense का ही है. A. So psychology in the workplace is the subject matter of industrial and organization. ठीक है, academic educational वाला हो गया, clinic hospitals वाला हो गया, social psychology is in general social. ठीक है, तो अब MCQs कर पाओगे थोड़े बहुत सॉल्व, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. अगर कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है,